is used to detect the current and to determine the direction of current. This moving coil galvanometer that was used to detect the current in the circuit and to determine direction of current. Directly it will not be used for measuring the current. करंट मेजर इससे नहीं होगा. करंट मेजर जो होता है वो एमीटर से मेजर होता है और वोल्टेज जो मेजर होती है वो वोल्ट मीटर से होती है. तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर वेयर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ galvanometer. So here in this chapter we will be discussing about galvanometer first, and then we will be discussing about the ammeter and voltmeter. So galvanometer का अगर पर्पस पूछा जाए for what purpose the galvanometer is used, so it is used to determine the direction of current and to detect the current. Then sometimes question may be, what is the principle of moving coil galvanometer? So principle was current carrying coil in magnetic field experiences torque. That we have discussed yesterday, that current carrying coil, if placed in magnetic field, then it will experience the torque, and the value of torque and this torque depends upon current passed through the coil. Greater the current you are passing through the coil, greater will be the torque acting on the coil. और जब टॉर्क लगेगा तो कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी. टॉर्क का ये फॉर्मूला आया था NIAB साइन थीटा. यहां पे ये टाउ जो है टॉर्क था, N was number of turns, coil के number of turns, I current passed, A area of the coil, B magnetic field, and theta angle which normal to coil makes with magnetic field. नॉर्मल टू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बनाएगी वो थीटा होगा. तो अगर बोले कॉइल पैरेलल टू फील्ड है थीटा 90, कॉइल परपेंडिकुलर टू फील्ड है थीटा 0, कॉइल इज मेकिंग 30 डिग्री, थीटा विल बी 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री. फॉर्मूले में देख लो, मोर करंट मोर टॉर्क मोर टर्निंग इफेक्ट. सर ये वैसा है क्या, 10th में पढ़े थे जनरेटर, उसमें ऐसी कॉइल को, वो जनरेटर था, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है. जनरेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट करती थी. हाँ सर, ठीक है. तो जनरेटर में करंट पास करते थे, सॉरी जनरेटर में करंट प्रोड्यूस होती थी, और यहां पे तुम करंट पास कर रहे हो तो वो मूव कर रही है. दोनों बिल्कुल रिवर्स हैं. जनरेटर में क्या होता था कि जब कॉइल को रोटेट करते थे
तो करंट प्रोड्यूस होती थी कॉइल में, और यहाँ पे कॉइल में करंट पास करोगे तो कॉइल मूव करेगी, जस्ट अपोजिट। ओके सर। ओके, सो नाउ विल टेकिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट इज सस्पेंडेड टाइप। जो हम लैब में यूज करते हैं वो वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर पाइवोटेड टाइप होता है। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। Now it consists of two pole pieces, and these pole pieces are not flat pole pieces, but they are concave cut pole pieces. ये जो पोल पीसेस होंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये इस तरह से फ्लैट पीसेस नहीं होंगे बल्कि ये कॉनकेव कट होंगे। इस तरह से दे विल नॉट बी फ्लैट, दे विल बी कॉनकेव कट। इस तरह से कॉनकेव कट पोल पीसेस होंगे। अ कॉइल इज बीइंग सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसेस। ये कॉइल सस्पेंडेड है, PQRS, and inside this coil there is cylindrical soft iron core. This is cylindrical soft iron core. This complete arrangement makes the magnetic field radial. ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा वैल्यू इज ऑलवेज 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 90 डिग्री होगी। फिर वीडियो रुक गया। हाँ, एक मिनट मैं ऑन कर रहा हूं उसको। So here you have concave cut pole pieces. Between these two pole pieces a coil is suspended, and inside the coil you have cylindrical soft iron core. This complete arrangement will make the magnetic field radial. Radial magnetic field means theta value will be always 90 degree, and we'll be discussing about this radial magnetic field in detail after completing this. So this is suspended by phosphor bronze strip, and this is a small plane mirror for taking the reading, and then here you have torsion head. ये यहाँ पे this one is your phosphor bronze strip, phosphor bronze strip rust proof होगी। ये phosphor bronze strip rust proof, and it can bear more weight. This is the plane mirror. This is for taking the reading. Plane mirror, circular
स्ट्रिप होती है प्लेन मिरर की, वेरी स्मॉल स्ट्रिप, एंड दिस इज टॉर्सन हेड, torsion head, and this side eye spring is there, and again it is being fixed, and this is another terminal T2. This terminal is T1. From here current enters and from this terminal current leaves. So this is your suspended type moving coil galvanometer. You draw it, then we'll discuss. So this coil is suspended between the pole pieces with the help of phosphor bronze strip on which a plane mirror is pasted, and then it is fixed in torsion head. Torsion head में क्या होता है कि ये torsion head है, इसमें ये वायर क्लैंप हो जाएगा, and then this wire will be free to rotate. ये वायर जो है रोटेट करने के लिए फ्री होगा, कोई ट्विस्टिंग नहीं आएगी वायर में। जैसे मान लो हम नॉर्मली अगर वायर को लें, ये वायर तुमने लिया और इसको नीचे से अगर घुमाओगे तो इसमें ट्विस्टिंग आ जाती है वायर में, लेकिन टॉर्सन हेड में पूरा का पूरा वायर एज सच रोटेट करेगा। ये कॉइल को सस्पेंड भी किए रहेगा, एंड दैट वायर विल बी फ्री टू रोटेट विदाउट एनी ट्विस्टिंग इन द वायर। अदर एंड स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा। स्प्रिंग का तुम्हें फंक्शन मालूम होगा, स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज। तुमने देखा होगा, इफ यू स्ट्रेच अ स्ट्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच करो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अगर तुम अपनी तरफ स्प्रिंग को खींचो तो वो फोर्स तुमसे अपोजिट अप्लाई करेगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो वो तुम्हारी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। सेम वे हियर, अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफर करेगा। अगर स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो स्प्रिंग क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफर करेगा। तो ये पर्पस होता है स्प्रिंग का, इट विल अपोज एनी चेंज, चेंज को अपोज करेगा। सो दिस इज द अबाउट दिस डायग्राम। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज यू हैव पास द करंट इन द कॉइल। मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रही तुमने कॉइल में, इस तरह करंट फ्लो कर रही है, आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे। करंट carrying wire situated in magnetic field experiences a force। अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करो तो उस पर फोर्स लगता है IBL, और फोर्स का डायरेक्शन गिवन होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इस वाले पे देख रहे हैं, करंट ऊपर तो फोर्स इनवर्ड अप्लाई हुआ, तो इस साइड पे इनवर्ड फोर्स और इस साइड पे आउटवर्ड फोर्स, क्योंकि करंट इसमें अपोजिट है। तो एक साइड पे इनवर्ड फोर्स लगेगा और एक साइड पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ये है, जैसे ये कॉइल है, इस पे इनवर्ड फोर्स लगा और इधर वाली साइड पे आउटवर्ड लगा, तो ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली साइड पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से,
और इस पे आउटवर्ड लग रहा है, तो ये बाहर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ जाएगी, कॉइल ऐसे रोटेट करेगी। सो राइट डाउन, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, when current is passed through the coil, a deflecting torque act on the coil, which is given by NIAB sin theta. Yesterday I have told you, and today I have revised also, that when current is passed through the coil, the torque act on it, and that torque is given by NIAB sin theta. N number of turns, I current, A area, B magnetic field. Why we are saying deflecting torque? Because when current will be passed, इस पे इनवर्ड, इस पे आउटवर्ड, ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई, so it will be known as deflecting torque. ये कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करा रहा है, सो वी आर सेइंग इट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. नेक्स्ट लाइन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, if magnetic field is radial, as we have taken here, if magnetic field is radial, radial magnetic field by these concave cut pole pieces and placing cylindrical soft iron core inside it. If magnetic field is radial, then theta will be 90 for all positions of the coil. Theta will be 90 for all positions of the coil. तो रेडियल फील्ड में थीटा 90 हो जाएगा एंड साइन 91 होता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम्स टू बी NIAB, इक्वेशन 1. अगर तुमने रिवर्स में करंट पास की तो ये रिवर्स में रोटेट करेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच करंट यू हैव पास्ड, it will experience the deflecting torque. Next line. As the coil rotates in magnetic field, the spring will offer ये कर लो. As the coil rotates in magnetic field, a spring will oppose the rotation of the coil. The spring will oppose the rotation of the coil and will offer restoring torque. तो यहां पे जो स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू C into phi. Here C is restoring torque per unit
rotation of coil. नाउ जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, स्प्रिंग इसके रोटेशन को अपोज करेगा, और स्प्रिंग के लिए ये कांस्टेंट है सी। सी जो है, इसकी वर्डिंग पे ध्यान दो, रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर 1 रेडियन रोटेशन ऑफ कॉइल। अगर कॉइल 1 रेडियन रोटेट करे तो रीस्टोरिंग जो ये ऑफर करेगा वो सी होगा। अगर 20 रेडियन रोटेट कर जाए कॉइल तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफर होगा वो 20 सी होगा। 50 रेडियन रोटेट कर जाए तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना ऑफर करेगा, 50 सी। और अगर 5 एंगल रोटेट करे तो रीस्टोरिंग टॉर्क C5। मान लो ये यहां से इस तरह 30 डिग्री रोटेट की कॉइल, तो 35 की वैल्यू हो गई, 30 रेडियन अगर है तो। 5 इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। फिर से देखो इसको, ये तुमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की विद सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर एंड कॉनकेव कट पोल पीसेस। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि थीटा की वैल्यू फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द कॉइल 90 रहेगी। थीटा वैल्यू फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ कॉइल विल बी 90 डिग्री। जैसे ही करंट पास की, कॉइल पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट किया, ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करी। जैसे जैसे ये मोर एंड मोर डिफ्लेक्ट होती जाएगी, स्प्रिंग का रीस्टोरिंग इसके ऊपर अपोजिट में इंक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे, और उस समय कॉइल इसी पोजीशन पे रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में आने के लिए जो इस पे डिफ्लेक्टिंग लगा है और जो इस पे रीस्टोरिंग लगा है, दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। अपोजिट तो है दोनों, इक्वल होते ही कॉइल उसी पोजीशन में स्टे कर जाएगी। सो राइट डाउन, द कॉइल विल कम टू रेस्ट, द कॉइल विल कम टू रेस्ट व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is equal to restoring torque. Coil will come to rest if